Yes, a very good afternoon to all of you students. Myself Vijay Singh, and we are discussing the chapter number 14 of your science book, that is chemical effect of electric current. And in this very chapter, we are trying to discuss a very important topic, that is electroplating. This topic we have already discussed in yesterday's session also, and we will continue this topic in today's session also. Let's take a quick recap what we have done or what we have understood about electroplating in yesterday's session. In yesterday's session, we have seen that electroplating is basically a chemical process. Electroplating is basically a chemical process in which we use the electricity to produce the chemicals. It is one of the very important effect that is produced by the electricity. It is the effect of electric current, है ना? In this chapter also and in the previous some topics also, हम इस chapter में या फिर हम इस chapter में ही और इससे पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बहुत अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं. कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के? There are three effects that you have heard about the electric current. One is magnetic effect of electric current, one is chemical effect of electric current, and one is heating effect of electric current. Yes or no? I hope इनके बारे में थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज आप सबको होगी. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के को हम यूज करके इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का और इलेक्ट्रिक मोटर्स का फॉर्मेशन करते हैं. क्या होता है बेसिकली कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, देन इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट and it will produce a magnetic field around it. It is known as the magnetic effect of electric current. Okay, the magnetic compass works on the principle of this magnetic compass only. Now, magnetic effect of electric current के principle पे ही हम जो है magnetic compass use करते हैं. We use the magnetic compass in the to make a tester. By using this effect of the electric current only. And there is one more effect of electric current, that is heating effect of electric current. क्या होता है basically कि whenever the electric current pass from a conducting wire, then heat is produced. It becomes quite hot. The temperature is increased and the heat is produced. Certain appliances like geysers, iron, immersion rod, there are various appliances which are based on the principle of heating effect of electric current. Okay, and in this chapter we are discussing the chemical effect of electric current. That is, whenever the electric current is passed through a solution, जब किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो सर्टेन केमिकल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. दिस इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. And the very important application of chemical effect of electric current, very important application of chemical effect of electric current is electroplating. बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स को यूज करते हैं विच आर इलेक्ट्रोप्लेटेड. Now, what is the electroplating? Basically, the basic process of electroplating we have seen in earlier sessions also. क्या होता है electroplating? कि when we apply the layer of one metal over the objects of another metal. When we apply the layers of one metal over the objects of another metal, this process is known as electroplating. And for this we require certain chemicals. इसके लिए हमें कुछ chemicals चाहिए होते हैं. एक बैटरी चाहिए होती है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, है ना? तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है. ये किस तरह से हाउ दिस प्रोसेस इज अचीव्ड दैट यू कैन सी इन फिगर 14.7. For doing the electroplating process, what you need a vessel. You need a vessel in which you can fill some chemicals. First of all, इसमें हम क्या fill करेंगे? Distilled water fill up करते हैं. Distilled water में हम थोड़ा सा copper sulfate add कर देते हैं. कॉपर सल्फेट क्यों लिया है? कि कॉपर सल्फेट is a salt
और जिस मेटल की आपको प्लेटिंग करनी है ना, सबसे पहले देखो हम स्टार्टिंग यहां से करते हैं, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक सर्टेन बैटरीज जिसमें से डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा हो, है ना। कुछ वायर्स हमें चाहिए होंगे इसके लिए, और इन वायर से हम कनेक्ट करेंगे कुछ इलेक्ट्रोड्स को, कुछ मेटल की प्लेट्स को जो है कनेक्ट करेंगे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उस मेटल को कनेक्ट करेंगे जिस मेटल की हमें प्लेटिंग करनी है, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे जिसके ऊपर, है ना, जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है, जिसके ऊपर हमें लेयर का फॉर्मेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई सिल्वर का ज्वेलरी, यू हैव सम ज्वेलरी ऑफ सिल्वर एंड यू वांट टू कोट इट विद अ गोल्ड कोटिंग उसके ऊपर करना चाह रहे हो, तो सिल्वर के ऑब्जेक्ट को आपको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और गोल्ड जो मेटल है आपके पास में जिसकी कोटिंग आपको करनी है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ठीक है। और इस वेसल में आपको एक सॉल्यूशन लेना है, ये सॉल्यूशन भी उसी मेटल का होना चाहिए जो आपने पॉजिटिव टर्मिनल पे लिया है। The metal which you have taken on the positive terminal, same solution you have to take ना, same metal solution, उसी metal का salt, उसी metal का solution आपको इसमें as a vessel में लेना है। Also conducting बनाने के लिए we can add some acid in it, like in this activity 14.7 we have added some sulfuric acid. The question may be arise like this: why we are adding the acid to the copper sulfate solution? To make it more conducting. To make it more conducting means so that the electricity can easily flow through it. As जितना easily electricity flow होगा उतना easily आपका electroplating का process भी उतना easily achieve होगा। So how this process is done? Process होता कैसे है basically? कि सपोज करें कि इसके अंदर जो है हमारे कौन सा सॉल्यूशन है, सपोज जैसे कि इस एक्टिविटी में लिया हुआ है ना, दैट वी विल टेक द एग्जांपल। इन दिस एक्टिविटी वी हैव टेकन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सल्फेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, and as soon as the electricity will flow, what will happen, these positive जो कॉपर आयंस हैं ना, पॉजिटिव जो कॉपर आयंस हैं, these positive copper ions will be attracted towards the negative electrode, जो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जो नेगेटिव रॉड है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सॉल्यूशन में जितने भी कॉपर के आयंस हैं, जो पॉजिटिव जो कॉपर के आयंस होंगे, वो जितने पॉजिटिव आयंस है, दैट विल ऑल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड लाइक दिस। और फिर सॉल्यूशन में तो कॉपर आयंस की कमी होगी, है ना, सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कमी होगी, तो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की जो कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास में जो पॉजिटिव वाली जो मेटल प्लेट है वहां से जो कॉपर आयंस है वो किस में आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ the metal ions are transferred from positive plate to the negative plate. Metals ions are transferred from positive plate to the negative plate. This process is known as electroplating. Yes, so this is the electroplating, this is the explanation of the electroplating process. Now basically all of you can see here, we are starting the reading portion. When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper solution sulfate dissociates into copper and sulfate. जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर एंड सल्फेट आयंस में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आपकी बुक्स में भी एक्टिविटी लिखी हुई रहेगी, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करें ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज ब्लू इन कलर हियर। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इट विल ब्रेक इनटू कॉपर एंड सल्फेट आयंस। नाउ द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। अभी जो फ्री, जो यहाँ पे कॉपर आयंस फ्री हो गए हैं ब्रेक डाउन होने के बाद में, है ना, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी ये ब्रेक डाउन हो गया, कॉपर के आयंस अलग हो गए, सल्फेट के आयन अलग हो गए। कॉपर के आयंस में पॉजिटिव चार्ज है,
सल्फेट के आयंस में नेगेटिव चार्ज है, तो आप इजीली आप बता सकते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो कौन से वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव वाले चार्ज वाला पार्ट है वो कौन से पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट हो पॉजिटिव वाले पार्ट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रोड है ना, जो इलेक्ट्रोड आपने यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है ना, आप देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, नेगेटिव। तो कॉपर वाले आयंस जो हैं दे विल बी ट्रांसफॉर्म टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो सल्फेट वाले आयंस है वो कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव वाले के पास में। आई होप इतना सबके क्लियर हो गया होगा ना। इसको हम 2 या 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, 2 स्टूडेंट्स आर रेगुलरली कमिंग, तो पता होगा 2-3 बार इसको हमने डिस्कस कर लिया है। यस, नाउ ऑल ऑफ यू सी। So negative terminal of the battery and gets deposit on it, but what about the loss of copper from the solution? लेकिन ऐसे अगर कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहा तो धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर तो जो कॉपर होगा वो सारा का सारा कॉपर सॉल्यूशन में से चला जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि हमने जो यहाँ पे जो मेटल लिया है उसकी कोटिंग यहाँ पर होनी चाहिए। हमारा ये टारगेट तो नहीं था कि सॉल्यूशन में से हमें जो है नेगेटिव वाले के ऊपर लेके आना है ना। तो यहाँ पे देखना बेटे, यहाँ पे क्या होता है, जितने मेटल के जितने कॉपर के आयन सॉल्यूशन में से नेगेटिव वाले पे इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होंगे सेम अमाउंट में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, लिसन टू मी अटेंटिवली, सेम अमाउंट में इस पॉजिटिव वाले जो इलेक्ट्रोड है वहां से मेटल आयन सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। आई रिपीट, अभी हम क्या देख रहे थे कि हमारे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें से जो प्लस वाले कॉपर आयंस है वो नेगेटिव के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे तो फिर कॉपर सारा का सारा सॉल्यूशन में खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म ना हो, ये बैलेंस बना रहे, इसीलिए ये जो पॉजिटिव वाली जो प्लेट है वहां से उस जितने अमाउंट में सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे जा रहे थे उतने सेम अमाउंट में इस इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस वापस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है, जब तक पॉजिटिव वाला प्लेट के ऊपर कॉपर आयंस हैं तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट कि क्योंकि नेगेटिव वाले के ऊपर कॉपर इकट्ठा हो रहा है, पॉजिटिव वाले से कॉपर दूर जा रहा है, तो पॉजिटिव वाली लेयर आफ्टर सम टाइम उसकी साइज कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जो नेगेटिव वाला है उस इलेक्ट्रोड की साइज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर इस नेगेटिव वाले पे इलेक्ट्रोड इकट्ठा हो रहा है इसलिए इसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है इसकी साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें से कॉपर बार बार क्या हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है ना। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Now, all of you see next paragraph. From the other electrode, a copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. Thus, the loss of the copper from the solution is restored and the process continues. This means that the copper gets transferred from one electrode to the other electrode. तो basically इसमें होता क्या है, एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर होता है, and this process is known as electroplating. Now all of you see the definition. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. This is the definition of electroplating, and this all you have to learn. I hope this definition is very clear. एक बार और इस definition को पढ़ते हैं और इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। The process of, किसका process है, depositing, क्या डिपोजिट कर रहे हैं, अ लेयर ऑफ अ डिजायर्ड मेटल, जिस मेटल की आप डिजायर्ड है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू अप्लाई द लेयर ऑफ गोल्ड, व्हाट यू वांट टू अप्लाई द लेयर ऑफ गोल्ड ऑन द सिल्वर, तो गोल्ड क्या हो गया, डिजायर्ड मेटल हो गया। सो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल on another material by means of electricity, किसके हेल्प से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं, is called electroplating. It is one of the most common applications of chemical effect of electric current. ये chemical effect of electric current का सबसे कॉमन मेथड है।
मतलब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज्यादा जहां यूज होता है ना, सबसे ज्यादा जहां केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है वो कौन सा प्रोसेस है बच्चों? दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. Yes, students. So electroplating is very useful process. It is widely used in the industry for coating metal objects with a thin layer of different metal. The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the objects lack. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims, and many other metals. Now, all of you can see some diagrams here. All of you can see figure 14.8. In this figure 14.8, there are various articles, there are various objects that we use in day-to-day activities, day-to-day life. Now, most of the metals have the coating of chromium metal on them. Generally, the metal which is coated over the other metal have some desired properties which the metal over which, मतलब दो मेटल है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की हमें क्या करनी है? कोटिंग करनी है. जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसमें कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उस मेटल में नहीं है जिसके ऊपर हम कोटिंग कर रहे हैं उस मेटल के, है ना. लाइक क्रोमियम है, क्रोमियम की कोटिंग हम करते हैं हैंडल बार्स, जो हमारे साइकिल के जो हैंडल बार्स आते हैं उसमें क्रोमियम की कोटिंग करते हैं. तो साइकिल का जो हैंडल बार है इट इज जनरली मेड अप ऑफ आयरन. आयरन स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन उसकी एक कमी क्या है कि इट इज नॉट वेरी गुड इन अपीयरेंस, नॉट वेरी शाइनी अपीयरेंस. लेकिन क्रोमियम में ये खास बात होती है. तो क्रोमियम मेटल में डिजायर्ड प्रॉपर्टी है कि उसकी शाइनी अपीयरेंस है. दैट्स व्हाई वी चूज द क्रोमियम मेटल टू अप्लाई द लेयर ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स, है ना, टू द आयरन हैंडल बार. गेटिंग द पॉइंट. तो जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है उनके कारण ही हम मेटल को सिलेक्ट करते हैं कि कौन से मेटल की कोटिंग कौन से मेटल के ऊपर करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कुछ सिल्वर का ज्वेलरी है एंड यू विल विश टू अप्लाई द लेयर ऑफ गोल्ड ऑन इट. Now, why you will wish to apply the layer of gold on it? Because gold have certain desired properties. It will have certain desired properties. That's why you require to apply the layer of gold on the silver. That's why. तो इसी तरह से मेटल को क्या है सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से मेटल की कवरिंग जो है कौन से मेटल के ऊपर अप्लाई करनी. Okay, student. So these were the applications of chemical effect of electric current and electroplating. I hope you all have understood the electroplating process and the application of the electroplating process. Some part of this chapter is still left that we will try to discuss in our next session. That's all for today's session. Thank you very much for joining the class.